And then now there are a lot of infertility cases are also coming up. Infertility is on a rise everywhere. Even in India, if you see worldwide, it's on a rise now. What do you think? What are the contributing factors for that? होता क्या है, अगर 100 लोग करवा के जाते हैं कोई भी प्रोसीजर, 100 में से 98-99% लोग ठीक रहते हैं. दे विल नॉट इवन टेल टू देयर फ्रेंड्स और एनीबडी दैट आई एम यूजिंग दिस कंट्रासेप्शन एंड वी आर सेफ एंड कंफर्टेबल. जिसको एक को प्रॉब्लम आ जाएगी ना, शी विल टेल इट टू थाउजेंड्स. तो आपने बोला कि जब 12 पीरियड्स मिस होते हैं, दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज बाय डेफिनेशन. अगर ऐसा भी होता है कि 6 मंथ्स पीरियड्स नहीं आए, उसके बाद फिर 1 मंथ आ गए, उसके बाद अगेन 6 मंथ्स नहीं आए, सो इज दैट आल्सो अ मेनोपॉज और इट्स जस्ट ए रेगुलर पीरियड? अगर कुछ ऐसा हुआ और उन्होंने कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज किया, फिर प्रेगनेंसी हो रही है या प्रेगनेंसी का डर है, taking a medicine as a solution is never a solution. It is never recommended. कि जो मैं सर्वे देख रही थी उसके अकॉर्डिंग आई थिंक आजकल 1 out of 3 गर्ल इज हैविंग PCOD. So what do you think? What are the causes? Why is it happening so much nowadays? तो डॉक्टर रितु एक बात बताइए, आजकल सर्वाइकल कैंसर बहुत ज़्यादा सुनने में आता है. सो आई हैव हर्ड देयर आर वैक्सीनेशंस फॉर दैट. सो इज इट रियली एडवाइजेबल? उसके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं, नहीं होते हैं? और अगर लेना चाहिए तो किस टाइम पे लेना चाहिए? व्हाट इज दैट अप्रोप्रिएट एज टाइम जब हम ले सकते हैं उसको? हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ब्लॉसम एवरीडे. This is the space where we believe in growing and learning in every area of life so that you blossom and your life blossoms. On this channel, we invite people from every walk of life to share their knowledge, their wisdom, their success and even their failures with you so that you can learn faster and grow faster. Now today's episode is very close to my heart because it's all about women's health and happiness. And before I introduce my guest, let me say this. Even if you are a man watching or listening right now, don't scroll away. If you have a mother, a sister, a wife, or simply any woman in your life, this conversation is just as important for you. Because when you understand women's health better, you can support them better. So in today's episode, we have a very special guest with us. Someone who beautifully blends science and spirituality for women's health and happiness. She is a gynecologist with over 20 years of clinical experience, a women happiness coach and spiritual guide who has touched the lives of thousands of women. After decades of working closely with women from all walks of life, she realized that true well-being is not just physical but also emotional, mental and spiritual. That's when she stepped into her higher calling to help women embrace joy, balance and inner harmony in every stage of life. Please join me in welcoming the incredible Dr. Ritu. Welcome Dr. Ritu at Blossom Everyday podcast. Thank you so much for joining us here. Thank you for giving me this opportunity to be here on your wonderful platform. Thank you so much. ओके डॉक्टर रितु, तो हम लोग आज के पॉडकास्ट में ना स्टेज बाय स्टेज बात करेंगे कि प्यूबेरिटी के टाइम पे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. फिर जब हमारा वो 20s से लेके 40s वाला जो टाइम होता है, व्हाट आर द कंसर्न्स एट दैट टाइम एंड व्हाट इज बियॉन्ड दैट, राइट? Because every phase is very different. It's very challenging also because all the time our hormones are changing, right? So let's talk about the first stage now. So the stage from say 8 to our age of 18, we can say that. तो जब किसी भी लड़की के पहली बार जब पीरियड शुरू होते हैं तो बॉडी में भी काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं उस टाइम पे, एंड गर्ल्स आर रियली कंफ्यूज्ड एट दैट टाइम. सो उस टाइम पे एक मदर उसको किस तरीके से सपोर्ट कर सकती है, किस तरीके से उसको नॉलेज दे सकती है? कैन यू टेल अस टू ऑल द मदर्स हु आर देयर एंड हु हैज द डॉटर इन दैट एज? यस, इस टाइम पे मदर का रोल बहुत क्रूशियल है. और पीरियड जब स्टार्ट होता है किसी भी लड़की का तो हम उसे प्यूबर्टी बोलते हैं, मिनार्की बोलते हैं एग्जैक्टली पीरियड स्टार्ट होने को. और प्यूबर्टी बोलते हैं, मिनार्की तो एक लैंडमार्क है कि इस दिन पीरियड स्टार्ट हो गया, लेकिन उसकी बॉडी में चेंजेस उससे पहले से शुरू हो जाते हैं. जैसे कि हाइट उसकी सडनली ग्रो कर जाती है, थोड़े से मूड में चेंजेस भी कभी कभी होते हैं, एंड थोड़े से और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि अंडर आर्म में थोड़ा हेयर ग्रोथ हो जाती है या ब्रेस्ट बड की डेवलपमेंट शुरू हो सकती है. इस तरह की चीजें हो सकती हैं इन द बिगिनिंग. सो इट कैन स्टार्ट जनरली 10, 11, 12 जैसी एज रहती है मोस्ट कॉमनली जो रहती है, बट इट कैन स्टार्ट एज अर्ली
एज 9 years और 8.5, लेकिन अगर 8 साल से पहले आती है तो हम इसे प्रिकॉशियस प्यूबर्टी बोलते हैं, एंड देन यू नीड टू कंसल्ट द डॉक्टर, जो भी आपके नियर बाय चाइल्ड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट हैं। और अगर लेट हो जाती है 15-16 साल के बाद, आपको बच्चे को नहीं आया पीरियड, 15-16 साल हो गया, इवन देन शी नीड टू बी कंसल्टेड। सो सबसे पहले तो एक पीरियड टाइम पे शुरू हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड उसके बाद जो मदर का रोल आता है वो है, बच्चे को कोई अवेयरनेस नहीं होती, ऑथेंटिक अवेयरनेस नहीं होती कि उस टाइम पे क्या करना है, क्या समझना है एंड कैसे मैनेज करना है। सो उस ऑथेंटिक नॉलेज के लिए मदर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। She can act as a best friend of the child and she can give all the required knowledge, stage by stage उसको दे सकते हैं। तो पीरियड स्टार्ट होने से जस्ट पहले, जब बच्चे की हाइट सडन ग्रोथ हो रही है, तो मदर कैन अंडरस्टैंड, शी कैन जस्ट गिव अ ब्रीफिंग। बेसिकली तो बॉन्डिंग होनी चाहिए मदर और बच्चे की, सो थिंग कम्स वेरी इजी। राइट, ओके। और जब ये नॉलेज देने की बात आती है, ये वाली जो स्टेज आती है, ऑब्वियसली बॉयज में भी वो चेंजेस हो रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, बट एट द सेम टाइम, जैसे व्हेन आई वुड टॉक अबाउट माय स्कूल टाइम, तो उस टाइम पे जब भी किसी लड़की के पीरियड शुरू होते थे ना, तो इट वाज लाइक लड़के ऐसे देखते थे उसको ना, जैसे पता नहीं क्या हो गया है, and they would laugh at her and they would make jokes at her. So that kind of environment was there. I'm sure the things are changing right now in this coming generation. But according to you, how important is it that at this age, when both genders hormones are changing, कि दोनों genders को दोनों के हार्मोनल चेंजेस के बारे में पता होना चाहिए, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर, एंड स्कूल में एक हार्मोनिकल एनवायरनमेंट बना रहे, एंड गर्ल्स ऑल्सो फील सेफ इन दैट एनवायरनमेंट। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों को ही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। गर्ल्स की बॉडी में जो चेंजेस हैं उनको पहले खुद का भी पता होना चाहिए, लेकिन बॉयज को भी अवेयरनेस होना चाहिए कि दिस इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ये होना ही है, दिस इज नेचुरल एंड नॉर्मल। सो ये अवेयरनेस, ये माइंडसेट देना बच्चों को बहुत जरूरी है। स्कूल का एक बहुत बड़ा रोल है, साथ ही पेरेंट्स का भी एक बड़ा रोल है इन सब अवेयरनेस को देने में। So this is important. Mother, father both can give. गर्ल्स के लिए मदर्स के साथ कनेक्ट करना आसान होता है, तो गर्ल्स को मदर बताएं, बॉयज को उनके फादर इंफॉर्मेशन दें। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। जिससे भी बच्चे ज्यादा अच्छे से बॉन्ड करते हैं उसके साथ बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अपोजिट जेंडर के बच्चे को नहीं बात कर सकते, ऐसा नहीं है, बट बच्चे की बॉन्डिंग जिससे भी है, जो भी करते हैं कर सकते हैं। ओके, कभी आपके साथ ऐसा होता है कि मदर्स उतना कंफर्टेबल नहीं होती है अपनी डॉटर से बात करने में, या फिर उनको उतनी नॉलेज नहीं होती है और वो आपके पास लेकर आते हैं उनको गाइडेंस के लिए अपनी छोटे बच्चों को? वेरी रूटीन, वेरी कॉमन, क्योंकि मदर्स को भी एग्जैक्ट नहीं पता। अभी रिसेंटली देयर वाज अ गर्ल, शी वाज 12 years, उसकी मदर उसको लेकर आई, इसको पीरियड नहीं स्टार्ट हो रहा, इसकी बाकी फ्रेंड्स को पीरियड आ रहा है। So she was very much concerned. She and her daughter both were concerned. क्योंकि अगर मदर कंसर्न है तो डॉटर भी कंसर्न हो जाएगी, राइट? तो वो उनको फिर बताया यही चीज, इट्स ओके, शी इज जस्ट 12 years एंड वी कैन वेट फॉर सम मोर टाइम। ओके, जस्ट अ रूटीन अल्ट्रासाउंड वी कैन एडवाइज। अल्ट्रासाउंड में वी कैन सी द इंटरनल ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड प्रॉपरली, वो सब चीजें दिख जाती है पेट के ऊपर से। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड हम कर लेते हैं तो उसमें पता लग जाता है। तो इट इज ओके। कोई भी कंसर्न है जिसकी नॉलेज अगर मदर को लगता है कि हम एग्जैक्ट नॉलेज नहीं दे सकते, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे भी अपनी मदर से बात करने में हेजिटेट करते हैं, तो कहीं तो मदर भी हेजिटेट करती होंगी तभी बच्चे हेजिटेट करते हैं। तो इफ देयर इज एनी हेजिटेशन, इफ एनीथिंग इज देयर, इट इज ऑलवेज गुड टू गो टू योर नियर बाय गायनेकोलॉजिस्ट। परफेक्ट। तो एक बात बताइए, तो इस टाइम पे अगर कोई पेशेंट आपके पास आती है तो आप उनको क्या बताते हैं? मतलब एज इन
क्या चीज़ें नॉर्मल हैं और क्या चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं। जैसे बहुत लोग होते हैं जिनको पीरियड्स में बहुत पेन होता है, क्रैम्प्स होते हैं, और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कुछ भी फील नहीं होता है, इट्स लाइक अ नॉर्मल डे फॉर देम। और कई लोग होते हैं जिनको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उस टाइम पे बहुत इरिटेटेड रहते हैं, बहुत गुस्से में रहते हैं, और कुछ लोग डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। Yes. सो व्हाट इज़ नॉर्मल, व्हाट इज़ नॉट नॉर्मल? देखो, हर इंसान की बॉडी डिफरेंट है। कोई भी चीज हर इंसान में सेम नहीं होती। अगर हम नॉर्मल खाना भी खाएंगे तो एक बाहर जाके कहीं खा रहे हैं तो कोई बीमार हो सकता है, कोई बीमार नहीं होगा। हर इंसान की बॉडी डिफरेंट है। सो पीरियड्स के टाइम पे किसी लड़की को पेन होना या ना होना कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसमें सबसे पहला फैक्टर ये है कि जब पीरियड शुरू होता है तो इनिशियली कुछ पीरियड्स बिना पेन के होते हैं। बहुत सारी गर्ल्स के इनिशियल पीरियड्स पता ही नहीं लगता उसको कब पीरियड आ गया, बिल्कुल पेन फ्री। एंड इट इज बिकॉज ऑफ फिजियोलॉजिकल इश्यूज। जो ओवुलेशन होती है हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, यानी कि जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स का जो हार्मोनल बैलेंस बनना है वो अभी मेच्योर नहीं होता, वो स्टार्ट हो रहा होता है फंक्शनिंग उसकी, तो वो प्रॉपरली काम नहीं करता। तो वो उनको पीरियड इरेगुलर हो सकता है इनिशियल ईयर्स में, 1 साल 2 साल, और वो वाले पीरियड्स जनरली पेनलेस पीरियड होते हैं। वंस ओवुलेशन स्टार्ट्स तो पेनफुल पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें कुछ लोगों को कम पेन होता है और कुछ लोगों को ज्यादा पेन हो सकता है। दैट इज पेन परसेप्शन का भी फर्क हो सकता है और एक्चुअल में भी पेन कम ज्यादा हो सकता है। सो इट कैन बी नॉर्मल। कुछ Okay. लोगों को पेन ना होना कैन बी नॉर्मल। Okay. So I had a friend. She was, I think, 17 or 18 years old at that time, and she used to have lot of cramps during those days, and she used to faint also sometimes. So is that really normal, having so much of pain? इतना पेन होना नॉर्मल नहीं है। एटलीस्ट इतना पेन बियर करना तो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। शी कैन टेक सम मेडिसिन। बड़ी हमारे पास मेडिसिन होती हैं तो वो हम दे सकते हैं। एक गोली दिन में 2-3 बार ले भी लेती है तो इट इज नॉट गोइंग टू डू दैट मच हार्म। इतना पेन होना कि वो फेंट हो जाए, हाँ, अगर फेंट कोई हो रहा है शी शुड बी डेफिनेटली इन्वेस्टिगेटेड, क्योंकि फेंट होने को हम कभी भी नॉर्मल नहीं मान सकते हैं। शी शुड गेट एटलीस्ट अ बेसिक अल्ट्रासाउंड, एंड फिर भी अगर फेंटिंग चलती है तो फेंट के लिए तो फिर जरूर ब्रेन और फिजिशियन को दिखा लेना चाहिए। राइट। तो जैसे पेन परसेप्शन की बात आती है और पेन की बात आती है, एंड यू सेड दैट सम पीपल feels less pain, some people have less pain. So आप जैसे एक मेंटल फिटनेस कोच भी हैं, वो भी आप सिखाते हैं, तो क्या ये ट्रू है कि जो चीज़ें हम बच्चों के माइंड में बचपन से डाल देते हैं वो एक्चुअली वो परसीव करना शुरू कर देते हैं? एज इन अगर मुझे एज इन अगर एक मदर को बहुत पेन होता है और मदर ने बचपन से अपनी बेटी को बोला है कि जब पीरियड्स होते हैं तो बहुत पेनफुल होता है, बहुत पेनफुल होता है, तो उसको वो परसेप्शन होना शुरू हो जाता है। और ऑन द अदर हैंड एक मदर है जिसके कोई पेन नहीं होता है, वो उसी तरीके से शी नॉर्मलाइजेस दैट थिंग, तो उसकी डॉटर शायद उस तरीके से पीरियड्स को देखती है। इज दैट ट्रू? आई कैंट रियली से इट ऑथेंटिकली, बिकॉज ऐसी कोई रिसर्च इस पे मैंने कभी पढ़ी नहीं है कि हुई है कि मदर को पेन हो रहा है तो बच्चे को पेन होगा क्योंकि मदर ने कहा मुझे पेन हो रहा है। सो ऐसा कुछ रिसर्च या मेंटल उसमें भी मैंने एंसेस्ट्रल या जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा नहीं पढ़ा। लेकिन किसी को पेन हो सकता है, किसी को नहीं हो सकता, दैट इज वेरी ट्रू। मदर को बहुत पेन हो सकता है, बच्चे को हो सकता है हो या ना हो, डिस्कम्फर्ट हो सकता है। फिर टॉलरेंस हर एक की अलग अलग होती है। तो अगर गर्ल इज कंफर्टेबल विद द पेन जितना भी उसे है और क्रैम्प्स, इट इज ओके। अगर वो कंफर्टेबल नहीं है देन शी शुड बी गिवन सम हेल्प। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसका पेन है एंड शी इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए। शी शुड बी गिवन हेल्प, बिकॉज कभी एग्जाम होगा उसका, कभी उसे कहीं जाना होगा, कभी कुछ भी हो सकता है। सो शी शुड बी गिवन हेल्प। एब्सोल्युटली। तो डॉक्टर रितु, एक बात बताइए, आजकल सर्वाइकल कैंसर बहुत ज़्यादा सुनने में आता है। सो आई हैव हर्ड देयर आर वैक्सीनेशंस फॉर दैट। सो इज इट रियली एडवाइजेबल? उसके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं, नहीं होते हैं?
और अगर लेना चाहिए तो किस टाइम पे लेना चाहिए? व्हाट इज दैट अप्रोप्रिएट एज टाइम जब हम ले सकते हैं उसको? सर्वाइकल कैंसर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि थोड़ी सी बड़ी एज की लेडीज को होता है। उसका डायग्नोसिस होना भी बहुत जरूरी है। डायग्नोसिस करते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन आपने सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन पूछा है, सो लेट्स डिस्कस दैट फर्स्ट। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन की जो एज है वो 9 ईयर्स से लेके 26 ईयर्स की एज तक ये वैक्सीनेशन एडवाइजेबल है। ये अनमैरिड लड़कियों को एक्चुअली बिफोर द बिगिनिंग ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी ये वैक्सीनेशन दिया जाता है, और इसकी जो प्रोटेक्शन है वो लगभग 80% प्रोटेक्शन मिलती है लोगों को। 100% नहीं, फुल प्रूफ नहीं होता, बट 80% इज गुड इनफ। 2 या 3 डोज दी जाती है डिपेंडिंग अपॉन द वैक्सीनेशन। उसके लिए जो भी ऑडियंस आप लोग देख रहे हैं, आप अपने नियर बाय गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके यू कैन आस्क द डिटेल्स, लेकिन ये इट इज रिकमेंडेड एंड इट इज कंसिडर्ड सेफ। दूसरी चीज आती है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन क्या इस एज के बाद दिया जा सकता है? यस, इसके बाद भी दिया जा सकता है। अप टू द एज ऑफ 45 इट कैन बी गिवन, बट उसकी एफिकेसी कंपैरेटिवली और कम हो जाती है। बट आप अपने डॉक्टर से मिलके इसको ले सकते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर का डायग्नोसिस कैसे होता है? मुझे कैसे पता लगेगा कि दिस इज समथिंग अलार्मिंग एंड आई नीड टू अप्रोच माय गायनेकोलॉजिस्ट एंड गेट माई सेल्फ चेक्ड? Yes, this is a very powerful question and it is very very important. सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन है, इंडिया में भी बहुत कॉमन है एंड वर्ल्ड वाइड भी कॉमन है। सो इसकी जो गाइडलाइंस है, फर्स्ट चीज तो ये है कि every woman should have a test which is called pap smear. हर 3 साल में पैप स्मेयर का टेस्ट करना जरूरी है। वो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा एंड डॉक्टर विल बी डूइंग दिस टेस्ट पैप स्मेयर, एंड अगर ठीक आ जाता है तो 3 साल तक आप चिंता नहीं करेंगे और उसके बाद करेंगे। शुरू कब करना चाहिए? 3 years after the onset of sexual activity. Suppose a girl is married at 25, तो 28 की एज के बाद से ये टेस्ट हर 3 साल में करना चाहिए, डिस्पाइट कि उसको वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं हुआ। वैक्सीनेशन अलग चीज है, उसके बाद भी टेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट। एंड आपने पूछा डायग्नोसिस, तो एक तो ये है पैप्समेयर से जो एज ए डॉक्टर हम लोग डायग्नोज करते हैं, लेकिन अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी है जो रिलेशन के बाद अगर स्पॉटिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, या पीरियड के बीच में ब्लीडिंग हो रही है, या कुछ भी ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं जो कि नॉर्मल से हटके हैं, देन यू शुड गो टू द डॉक्टर and get the pap smear done, and pap smear is good enough to diagnose a cervical cancer. कोई भी कैंसर जो होता है ना, उसकी स्टेज 1, 2, 3, 4 आप लोगों ने सुनी होंगी, बड़े आराम से कॉमनली हमने देखा है। बट सर्वाइकल कैंसर की एक चीज ये होती है, इट कैन बी डायग्नोज एट स्टेज 0। सो उसके लिए पैप स्मेयर इज रिक्वायर्ड। ओके। पैप स्मेयर लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी भी आजकल करते हैं, वो थोड़ा सा और स्पेसिफिक थोड़ा सा होता है कुछ चीजों में, तो ये आप कर सकते हैं। सो इसका अर्ली डायग्नोसिस, इसका मतलब इसका पूरा क्योर किया जा सकता है, लेकिन अगर डायग्नोसिस ही नहीं हुआ तो फिर तो जब भी जिस स्टेज में भी पेशेंट आता है तो उसके आगे ही ट्रीटमेंट होता है। एब्सोल्युटली। तो आपने बोला कि ये जब सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू करते हैं उसके 3 साल के बाद से स्टार्ट करना चाहिए। सो इफ समबडी इज नॉट सेक्सुअली एक्टिव तो उनको सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस नहीं होते हैं, दैट मीन्स? अगर बिल्कुल भी नहीं है, कभी भी नहीं हुआ सेक्सुअल एक्टिविटी, तो नहीं होगा। ओके। और ऐसा भी कुछ है कि जिन्होंने चाइल्ड बर्थ किया है उनको ज्यादा चांसेस हैं सर्वाइकल कैंसर होने के रादर देन दी अदर वुमेन? ना। ओके, ऐसा कुछ नहीं है। तो डॉक्टर रितु, यहाँ पर फिर बात आती है पीसीओडी की, क्योंकि जो मैं सर्वे देख रही थी उसके अकॉर्डिंग आई थिंक आजकल 1 out of 3 गर्ल इज हैविंग पीसीओडी। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द कॉजेज, व्हाई इज इट हैपनिंग सो मच नाउअडेज? PCOD is very important and we really need to address this problem at a very early age of life, because जैसे ही पीरियड स्टार्ट होते हैं हार्मोनल चेंजेस होते हैं
फीमेल की बॉडी में, एंड थोड़ा सा उसकी बॉडी शेप चेंज होने लगती है, एंड थोड़ा फैट डिपोजिशन होता है, उसकी बॉडी शेप चेंज होती है, एंड पीसीओडी भी होने लगता है बिकॉज वहां भी हार्मोनल इम्बैलेंस है, प्रॉपरली ओवुलेशन नहीं हो पाती हार्मोनल चेंजेस की वजह से। तो पीसीओडी होता है, उनके पीरियड कई बार डिले होने लगता है, वो वेट पुट ऑन करने लगते हैं, थोड़ी फेशियल हेयर ग्रोथ, यहाँ एक आध बाल आ जाएगा, इधर आ जाएंगे, थोड़ा हेयर ग्रोथ आ जाती है, एक्ने आ जाती है, इस तरह के साइन और सिम्टम्स आने लगते हैं। किसी एक चीज को देख के हम पीसीओडी डिक्लेयर नहीं कर सकते, या एक चीज की एब्सेंस से हम नहीं कह सकते पीसीओडी नहीं है। कुछ गर्ल्स होती है वेट बहुत हाई है लेकिन पीरियड नॉर्मल है, तो कहेंगे मुझे पीसीओडी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो ब्लड टेस्ट कुछ करने जरूरी होते हैं, अल्ट्रासाउंड में डायग्नोज करना होता है, और जो क्लिनिकल फीचर्स हैं उनमें देखना होता है। तो अगर एक से ज्यादा चीजें हैं जो पीसीओडी को सजेस्ट कर रही हैं, वी कैन कंसीडर हर पीसीओडी। एंड कभी कभी तो फैटी लोग होते हैं, बट आई हैव सीन सो मेनी पीपल जो कि पतली दुबली लड़कियां हैं एंड स्टिल दे आर हैविंग पीसीओडी। सो इट इज नॉट ओनली फैट, दिस इज अ मल्टीपल सिम्टम्स एंड साइंस आर देयर। सो पीसीओडी की जो शुरुआत होती है वो जनरली प्यूबर्टी के साथ, पीरियड स्टार्ट होने के साथ टीनेज में हो जाती है, and she should be given a lifestyle of healthy life, healthy diet, healthy yoga। ये सब चीजों ने इस एज में अगर वो सीखा लेते हैं, सीख जाते हैं, तो वो उनके लिए मैनेज करना आसान होता है। तो एक बात बताइए, जैसे आपने बोला कि पीसीओडी में चीजें कुछ होते हैं, फेशियल हेयर होते हैं, एक्नीज होते हैं, वेट गेन हो जाता है, वो सब होता है, तो इज इट पॉसिबल कि हम पीसीओडी को रिवर्स कर सकते हैं बाय डूइंग सम लाइफस्टाइल चेंजेस और बाय डूइंग सम अल्टरनेट थेरेपी? इज इट पॉसिबल, और या फिर लाइफ लॉन्ग पीसीओडी रहता है अगर एक बार हो जाता है तो? लाइफस्टाइल चेंजेस करके आप उसको रिवर्ट बैक कर सकते हैं, दैट इज द ओनली ट्रीटमेंट। पीसीओडी को अगर आप कहें कि क्योर कर सकते हैं, ठीक हो जाएगा, कभी होगा नहीं, ऐसा नहीं होता, बट यू कैन ऑलवेज रिवर्स इट। जब लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, आपके हार्मोन्स बेटर हो जाएंगे, आपका वेट कंट्रोल हो जाएगा, एंड जो भी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पीसीओडी है वो बहुत सबसाइड कर जाती है। राइट। और क्या क्या आप लाइफस्टाइल चेंजेस बताना चाहेंगे पीसीओडी के लिए जो गर्ल्स अभी से लेना शुरू कर सकती हैं? किसी भी एज पे पीसीओडी अगर है तो सबसे इंपॉर्टेंट तो लाइफस्टाइल है। पीसीओडी का बेसिक ट्रीटमेंट अगर हम सोचते हैं तो डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन, ये तीन चीजें हैं जो पीसीओडी की ट्रीटमेंट है। लेकिन अगर कम एज पे पीसीओडी है, टीनेज गर्ल्स को पीसीओडी शुरू हो गया होना, तो मेडिसिन में बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करती अनटिल अनलेस इट इज रियली रियली रिक्वायर्ड। सो जो प्रेफर्ड चीजें हैं वो डाइट में चेंजेस करते हैं, और जो दूसरी चीजें आप उसको एक्सरसाइज इन द फॉर्म ऑफ योग और जिम और व्हाटसोएवर, सो वो आपको करना है। सो डाइट की जहां तक अगर हम बात करते हैं, डाइट में एक सिंपल प्रिंसिपल मैं सभी को बोलती हूँ, बहुत आसान तरीका है कि पीसीओडी के लिए क्या डाइट खानी है। बहुत सारी वेरिएशन अवेलेबल है, बट द मेन प्रिंसिपल इज रिक्वायर्ड लो कैलोरी एंड हाई न्यूट्रिशन। कैलोरीज कम होंगी तो वेट अपने आप कम हो जाएगा, और न्यूट्रिशन बढ़ते बच्चे के लिए देना ही है। हर स्टेज ऑफ लाइफ पे न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, तो न्यूट्रिशन तो देना ही पड़ेगा। तो ये तो डाइट का हो गया, एंड बाकी रहता है कैलोरी बर्नआउट, क्योंकि पीसीओडी रिवर्स करना है आपको। उसके लिए आप कोई भी मोडालिटी ले सकते हैं, चाहे ये योगा है, वॉकिंग है, एक्सरसाइज है, डांस है, जिम है, कुछ भी तरीका। यू जस्ट हैव टू बर्न द कैलोरीज एज अ फर्स्ट स्टेप। So PCOD can easily be managed by lifestyle changes. राइट। तो एक बात बताइए, जैसे जब भी पीसीओडी होता है तो सबसे पहली चीज मतलब पता कैसे लगता है? जैसे मुझे भी पीसीओडी हुआ था एंड इट हैड come in a very early age. I was, I think, 17 years old at that time, 16 or 17, somewhere like that. और मुझे कैसे पता लगा था? मेरे पीरियड्स चलते ही रहते थे, 1 month 2 months चलते ही रहते थे, जब तक मैं डॉक्टर के पास जाके दवाई ना खाऊं। और उसके बाद फिर एक बार दवाई खा लिया, बंद हो गए, तो वो स्टार्ट ही नहीं होंगे जब तक दोबारा से डॉक्टर के पास जाके दवाई ना लो। सो दैट इज हाउ आई गॉट डायग्नोज्ड विद इट। सो व्हाट आर अदर थिंग्स दैट यू नो डॉक्टर्स की दुकान चलने के लिए जरूरी है ना। So
तो पीसीओडी की जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, ओवुलेशन प्रॉपरली नहीं होती। पीरियड को नॉर्मल आने के लिए ओवुलेशन होना जरूरी है। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जैसे आपको पता है, दो हार्मोन्स मेन होते हैं। ओवुलेशन होगी तो प्रोजेस्टेरोन आएगा और उसके 14 डेज के बाद पीरियड आ जाएगा। पीसीओडी में प्रॉब्लम आती है ओवुलेशन ही ठीक से नहीं हो रहा है। तो ओवुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है तो प्रोजेस्टेरोन आएगा नहीं, बॉडी में प्रोजेस्टेरोन आएगा नहीं तो उसका विड्रॉल नहीं होगा और पीरियड नहीं आएगा। ईस्ट्रोजन विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग, थोड़ा सा टेक्निकल हो गया है, लेकिन उससे एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो थिकंड हो जाती है और उसको प्रॉपर तरीके से ब्रेक नहीं होती है जब उसको पीरियड आना है, एंड वो इरेगुलरली एंडोमेट्रियम ब्रेक होती है एंड इट कीप्स ऑन bleeding and bleeding. 1 महीना 2 महीना. Recently I have seen a girl, she came from some other country, she came from UK during her vacation, और जब वो मेरे पास आई तो she was weighing 142 kg and she was having continuous period, कभी कम कभी ज्यादा. She was having her period from last 3.5 or 4 months. She Okay. was having periods. So उससे पहले she missed period for few months. तो वो हो जाती है, यही hormones का imbalance है. So she was given some medicines immediately उसको stop करना. Then she had to go to lifestyle changes. उसके बिना तो आप 142 kg में आप समझ सकते हो ना, 24-year-old girl and 142 kg weight. तो वो तो मतलब that is one of the extremes. Absolutely. वो जरूरी है डाइट और लाइफस्टाइल को मैनेज करना तो। राइट। मैंने भी फिर बाद में जब अकल आई थोड़ी सी उस टाइम पे, तो इनफैक्ट डॉक्टर्स भी उतना नहीं बताते हैं शायद, या फिर आजकल बताने लग गए हैं, उस टाइम पे नहीं बताते थे। तो मुझे किसी ने लाइफस्टाइल के बारे में कुछ नहीं बोला, सो आई यूज्ड टू गो देयर, वो बस टेस्ट करते थे कुछ। आई रिमेंबर दोस टेस्ट आल्सो, LH, FSH और ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये सारे टेस्ट होते थे। आई स्टिल रिमेंबर इट सो विविडली, क्योंकि हर तीसरे महीने पे होते थे। क्योंकि वही होता था ना, पीरियड्स होते नहीं थे और फिर होते थे तो चलते ही रहते थे, एंड इट वाज लाइक अ रेगुलर थिंग फॉर 5-6 years। यही चीज चलती थी। उसके बाद फाइनली जब आई थिंक आई वाज बियॉन्ड 18 years ऑफ एज, डॉक्टर ने मुझे बोल दिया कि यू विल बी हैविंग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। उन्होंने मुझे कुछ दे दी थी जो 21 days के लिए लेते हैं, दैट थ्रू आउट योर लाइफ यू विल हैव टू टेक दीज पिल्स, और कोई इलाज नहीं है इसका। उन्होंने भी ये नहीं बोला कि आप लाइफस्टाइल चेंज करो, ये करो, वो करो। काश कोई मुझे उस टाइम पे बता देता। बट हाँ, your duty and to spread the knowledge about this, which एग्जैक्टली is important. एग्जैक्टली। तो लेटर ऑन, मतलब बहुत टाइम के बाद, लकीली भगवान की बहुत कृपा रही मेरे ऊपर, मुझे कभी कंसीव करने में प्रॉब्लम नहीं हुई। आई कंसीव्ड बोथ माय चिल्ड्रन आराम से एकदम। और उसके बाद जाके मुझे थोड़ी सी अकल आई, तब मुझे पता लगा नहीं, पीसीओडी के साथ रहना जरूरी नहीं है, यू कैन रिवर्स इट। और देन आई स्टार्टेड मेकिंग चेंजेस इन माई लाइफ। आई स्टार्टेड डूइंग योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम प्रैक्टिसेस मैंने करना शुरू किया। एक्सरसाइज तो पहले भी मैं करती थी, बट उसकी वजह से मेरा वेट मेंटेन रहा। दैट वाज अ वेरी गुड थिंग कि मैंने एटलीस्ट उस टाइम पे वेट को मेंटेन रखा। बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो आई थिंक दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट। बट जब मैंने योगा प्रैक्टिसेस को भी उसके अंदर इंक्लूड किया ना, दैट वाज अ गेम चेंजर फॉर मी। माइट नॉट बी फॉर एवरीवन, आई कांट से दैट, बट फॉर मी इट वाज अ गेम चेंजर। Yoga is a game changer for everybody, those who can do it consistently. I have seen miracles with yoga. One of a patient came to me. She had been married for 10 years और उसको pregnancy नहीं हो रही थी, and she started doing yoga and some dietary changes and yoga. She conceived within 3 to 4 months of her yoga, and she had a wonderful daughter. Cesarean हुआ उसका because of many other factors, but बड़े बढ़िया से उसकी हुआ, and it was just, उसने सब कुछ करके देखा था, but yoga is always a game changer. ओके, तो यहाँ से हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेज पे, विच इज बियॉन्ड 18 and 40। तो इस टाइम की ये वाली जो एज होती है, सबसे पहली चीज तो जो आजकल बहुत देखने में आती है कि इस एज में आते ही आजकल सेक्सुअल इंटीमेसी बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई है इस एज में। सो बिफोर मैरिज ऑल्सो पीपल गेट इनटू दीज एक्शंस, राइट?
And if they have not taken any contraception at that time during the act, they start taking pills of some kind so that pregnancy doesn't happen. Is it really safe that you don't go to your doctor, you don't talk to them, and you just take over the It is counter not- pills for that? But the question you have asked is a very deep question and it's a really need of the time. सबसे पहली चीज तो सेक्सुअल इंटीमेसी की जो एज नहीं है उसमें भी बच्चे उस फील्ड में जाने लगे हैं. तो सबसे पहले जो हमने बात की कि प्यूबर्टी की एज पे उस टाइम पे अगर बच्चे की और मदर की बॉन्डिंग है तो वो बॉन्डिंग कैन कंटिन्यू ड्यूरिंग द कॉलेज लाइफ ऑल्सो. और जब उन्हें पता है कि ये नॉर्मल पार्ट है, अगर बच्चों को पता है, दे कैन होल्ड देयर डिजायर फॉर दिस अनसेफ प्रैक्टिसेस. क्योंकि अगर कुछ ऐसा हुआ और उन्होंने कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज किया, फिर प्रेगनेंसी हो रही है या प्रेगनेंसी का डर है, taking a medicine as a solution is never a solution. It is never recommended. The medicines like this emergency contraception हम इसे बोलते हैं, this is never recommended. उसके अपने कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं तो वो नहीं लेनी चाहिए. हम बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करते. इवन टू द मैरिड कपल्स हम नहीं एडवाइस करते. किसी के लिए भी वो एडवाइजेबल नहीं है. कुछ आपके सामने ऐसे केसेस आए हैं जहां पर किसी ने ऐसे ओवर द काउंटर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसे पिल्स लिए और कुछ एडवर्स इफेक्ट्स आए उसकी वजह से, लाइक दोज वर एक्सट्रीम? हाँ, एक्सट्रीम तो इसमें मैं दो तीन तरह से कह सकती हूँ. एक तो सबसे कॉमन तो पीरियड इरेगुलर हो जाता है उनका, बहुत सारे लोगों का, या कभी कभी डिले हो जाता है, तो दे आर नॉट श्योर कि उन्हें प्रेगनेंसी हो गई है या नहीं हो गई है या क्या हो गया. अल्टीमेटली समटाइम्स दे नीड टू गो टू डॉक्टर और उसके बाद वो कंफ्यूजन होता है उस पीरियड को नॉर्मल और रेगुलर करने में. और दूसरा, इन द मैरिड जनरेशन वो लोग भी कई बार ऐसे पिल्स ले लेते हैं, पिल्स ले भी लेते हैं एंड देन दे कंसीव हो जाता है, तो अभी उनको वो बच्चा भी कंटिन्यू करना होता है. तो बहुत बार, बहुत कॉमनली ऐसे लोग आते हैं जिनकी प्रेगनेंसी हो गई है 2 months की एंड फिर वो बताते हैं हमने तो वो दवाई भी खाई थी. देन दे हैव टू टेक द रिस्क कि अगर उस मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट हुआ तो दे हैव टू गो थ्रू इट. दूसरी चीज एक और है कि कुछ तरह की प्रॉब्लम्स का इंसिडेंस थोड़ा ज्यादा है जब वो इस तरह की कोई मेडिसिन खाते हैं. सो इट इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड टू टेक दिस मेडिसिन. हमेशा डॉक्टर के पास जाओ. स्ट्रेस सारा अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है, अपना स्ट्रेस डॉक्टर को देके आ जाओ. जरूरत होगी तो आपको दवाई देंगे, कई बार जरूरत भी नहीं होती है दवाई देने की. राइट. आई थिंक वो स्ट्रेस की बात आई थिंक ये होती है कि लोग अशेम्ड फील करते हैं कि अभी ऐसे टाइम पे हम लोग ये चीज कर रहे हैं और अब हम डॉक्टर के पास कैसे जाएं, डॉक्टर भी हमें स्कोल्ड करने वाली है. क्योंकि ऑब्वियसली आई थिंक आपके पास कोई ऐसे पेशेंट आते होंगे तो आप उनको जरूर स्कोल्ड करते होंगे. मैं ज्यादा नहीं स्कोल्ड करती. अच्छा, ज्यादा नहीं करते. ओके ओके ऑडियंस, इफ यू नीड हर यू कैन गो टू हर. देखो, इफ द कपल इज मैरिड तब तो स्कोल्ड करने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना, क्योंकि मैरिड कपल है, दे आर स्टेइंग टुगेदर, तो दे कैन हैव इट. और कभी कभी ऐसी एज में 40+ वाले लोग भी आ जाते हैं तो दे आर रियली वरीड कि अब क्या करें. तो भी दे आर हस्बैंड वाइफ, इट इज ओके, इट्स नॉर्मल, वी शुड एक्सेप्ट इट कि एज हो गई है 40-45 तो भी क्या फर्क पड़ रहा है. सो आई डोंट स्कोल्ड. एंड अगर बच्चे जो हैं उनको अगर हम स्कोल्ड ही करेंगे तो बच्चों ने जिन्होंने गलत कुछ किया, स्कोल्डिंग इज नेवर अ सॉल्यूशन. तो उनको समझाना जरूरी है कि क्या जरूरी है क्या नहीं है. अगर वो सुनने को तैयार है तो समझा देती हूँ, नहीं सुनने को तैयार है तो जो मेडिकल एडवाइस उनके लिए उस पर्टिकुलर कंडीशन में रिकमेंडेड है, वी गिव दैट मेडिकल एडवाइस. राइट. तो लेकिन मैंने ना बहुत सारे कपल्स में ये भी देखा है, स्पेशली जो ना रूरल एरिया से जो आते हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो मेल मेंबर्स होते हैं, लाइक हस्बैंड जो होते हैं, दे डोंट वांट टू यूज एनी कॉन्ट्रासेप्शन, दे डोंट वांट टू यूज कॉन्डोम्स, दे डोंट वांट टू यूज एनी अदर थिंग, एंड इवन दे डोंट अलाउ देयर फीमेल ऑल्सो टू यूज एनीथिंग. और फिर ऑब्वियसली प्रेगनेंसी तो हो ही जाएगी, एंड देन दे डोंट वांट चिल्ड्रन ऑल्सो, एंड देन आई हैव सीन वुमेन गो थ्रू मल्टीपल अबॉर्शंस. So is it really good for a female's health going through so many Obviously abortions? not. No.
बिल्कुल भी नहीं है. दैट इज व्हाट योर पॉडकास्ट विल बी हेल्पिंग फीमेल्स नॉट टू गो फॉर दिस अबॉर्शंस. गो तो फॉर आप उनको, अगर आप उनको अभी कुछ बोलना चाहेंगे, स्पेशली उन मेल्स को भी, क्योंकि ऑब्वियसली एक जो फीमेल होती है, आई थिंक वो उस पोजीशन में नहीं होती है कि वो कुछ कर पाती है उस टाइम पे. इतना ज्यादा फैमिली का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उसका अपने बॉडी के ऊपर भी हक नहीं होता है. सारा हक वो फैमिली उसको बताती है कि तुम ये करो, तुम वो नहीं करो. तो व्हाट डू यू वांट टू टेल दैट फैमिली और दोज मेन ऑफ दैट फैमिली, हाउ शुड दे टेक केयर, हाउ शुड दे सपोर्ट? अवेयरनेस ही जरूरी है. सबसे ज्यादा अवेयरनेस जरूरी है. हर चीज की अवेयरनेस जरूरी है. अभी आजकल बहुत अच्छी तरह से अच्छे अच्छे कॉन्ट्रासेप्टिव चीजें आ गई हैं और दे कैन बी यूज्ड. एक कॉपर टी के लिए बड़ा मिथ फैला हुआ है कि कॉपर टी से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम नहीं डलवाएंगे. ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बट दैट इज नॉट द रियलिटी. होता क्या है, अगर 100 लोग करवा के जाते हैं कोई भी प्रोसीजर, 100 में से 98-99% लोग ठीक रहते हैं. दे विल नॉट इवन टेल टू देयर फ्रेंड्स और एनीबडी दैट आई एम यूजिंग दिस कंट्रासेप्शन एंड वी आर सेफ एंड कंफर्टेबल. जिसको एक को प्रॉब्लम आ जाएगी ना, शी विल टेल इट टू थाउजेंड्स कि ये ऐसा है. तो इसलिए कौन सी चीज से प्रॉब्लम आ रही है, वो सुनी सुनाई चीजों पे आप बात ना करें, उस पे ना जाएं. यही एक मैसेज मैं दे सकती हूँ कि अपने डॉक्टर के पास जाओ. बहुत सारी ऑप्शंस आजकल अवेलेबल हैं जो कि बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं एंड दिस आर रियली वंडरफुल ऑप्शंस जिसके बारे में पता नहीं होता जनरल हमारी लेमन पॉपुलेशन को. तो कुछ इतनी सेफ ऑप्शंस हैं कि मतलब हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप ये कर लो. आई कांट टेक द नेम्स ऑफ एनीथिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, बट 5 साल के लिए हमने कुछ कॉन्ट्रासेप्शन दिया, फिर उसके 5 साल कंप्लीट हुए, अगेन फॉर 5 years एंड अगेन पीपल आर सो कंफर्टेबल विद दोज ऑप्शंस. हाँ, किसी किसी को नहीं सूट करती तो उसमें कुछ और किया जा सकता है. Okay, but there are solutions, so it is a need of time that go to your doctor and just go to discuss your it. doctor and discuss. Not deteriorate your health. It is for ladies also and for the husbands also. Right. Obviously, अगर woman की health अच्छी नहीं रहेगी तो she is not able to take care of the family. पूरी family. Everyone is going to suffer in that case. Nobody is going to be happy anyways. Yes. Absolutely. तो डॉक्टर, तो एक बात बताइए, मैंने बहुत देखा है कि एक UTI और एक vaginal infection, these are very common things which happen in females' health. So what are the precautions that they should have so that the occurrence of UTI and vaginal infections are less? UTI के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक और लिक्विड इनटेक. अगर हल्का भी बर्निंग जैसा महसूस हुआ, ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर. बहुत सारा पानी पीने से इट विल बी फ्लश्ड आउट. अगर उसके बाद भी नहीं ठीक हो रहा है, देन गो टू द डॉक्टर. यू हैव टू टेक द मेडिसिन, बट मेडिसिन के साथ अगेन बहुत सारा पानी पीना है. जैसे वो होता है ना कि अगर कपड़े गंदे हैं, धोना है, तो सर्फ तो थोड़ा सा चाहिए, पानी 2 बकेट भर के चाहिए. तो यूटीआई को ट्रीट करने के लिए आपको दवाई का रोल तो थोड़ा सा है, बाकी मैक्सिमम रोल तो पानी का है. ओके. एंड व्हाट अबाउट वजाइनल इन्फेक्शंस? वो इतना क्यों होते हैं इतना ज्यादा? वेजाइनल इन्फेक्शन के तो बहुत सारे, मतलब दैट्स अ बिग क्वेश्चन एंड डिटेल्ड थिंग, बट उसका एक चीज मैं आपको बोल सकती हूँ कि अगर रिकरेंट वेजाइनल इन्फेक्शन है तो एक तो डॉक्टर के पास जाके चेक करना है कि क्यों हो रहा है. यू नीड ट्रीटमेंट फॉर समटाइम्स एंड समटाइम्स शुगर की प्रॉब्लम भी होती है. पेशेंट को खुद को डायबिटीज है या हस्बैंड को अगर डायबिटीज है तो उनको भी थोड़ी सी कुछ इन्फेक्शंस ज्यादा होती है. बट अदरवाइज अगर वेजाइनल इन्फेक्शन होती है तो उसके लिए ऐसे सिर्फ एक चीज हम कह सकें, हाइजीन इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, वो तो देखना ही है, लेकिन उसके सिवा ऐसा कोई एक पॉइंट नहीं है कि वेजाइनल इन्फेक्शन ना हो तो ये करें. जनरलाइज्ड गुड इम्यूनिटी इज गुड, वो आपने ध्यान देना है, अपनी हेल्थ केयर करनी है, अपना हाइजीन मेंटेन करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट. बट फिर भी अगर वेजाइनल इन्फेक्शन है, वहां कोई अल्सर है या ज्यादा इचिंग है या कुछ भी है, गो टू द डॉक्टर एंड गेट इट चेक्ड वंस. Okay. And tell us a little bit about our breast health also.
क्योंकि आजकल ब्रेस्ट कैंसर के भी बहुत केसेस बढ़ रहे हैं, सो कितना फ्रिक्वेंटली हमें चेकअप करना चाहिए? और जब हम सेल्फ चेकअप की भी बात आती है, जब ब्रेस्ट के बारे में बात आती है, तो जब हम सेल्फ चेकअप भी करते हैं तो वो कितना फ्रिक्वेंटली करना चाहिए, एंड व्हाट शुड वी एक्चुअली लुक फॉर इन दैट? दैट शुड बी वंस इन अ मंथ। ओके। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन महीने में एक बार करना चाहिए, एंड दैट शुड बी डन विद द 4 फिंगर्स। अपने आप से उसको दबा के देखना है। फिर बाजू में, एक्जिला में और यहाँ गर्दन के आसपास भी कहीं कोई गांठ या कोई डिस्चार्ज है तो आपको देखना चाहिए। सो वंस इन अ मंथ करना चाहिए। बाकी 35 की एज के बाद अल्ट्रासाउंड या जो भी रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशंस हैं, डिपेंडिंग अपॉन मेनी फैक्टर्स, कि कुछ प्रॉब्लम है या फैमिली हिस्ट्री है, सो बहुत सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग है। दैट कैन बी डन स्पेसिफिकली विद द कंसल्टेशन ऑफ योर डॉक्टर. So let's say there is no family history and the female is quite healthy and good. तो उस केस में एक अगर हम रेगुलर चेकअप की बात करें तो डॉक्टर के पास जाके, तो वो कितना फ्रीक्वेंटली होना चाहिए? अगर रूटीन चेकअप करना है जनरल में तो साल में एक बार हम रूटीन चेकअप हम बोलते हैं, पूरा फुल बॉडी चेकअप एक बार रूटीन हो जाना चाहिए, उसमें कोई इश्यू नहीं है। और हीमोग्लोबिन मेंटेन रहना जरूरी है। जैसे अभी हम मेनोपॉज की अगर हम बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन मेंटेन करना जरूरी है। और उससे पहले की एज की भी बात करें तो विटामिन डी, विटामिन B12 इनके लेवल्स मेंटेन रहना या सप्लीमेंटेशन लेना काफी जरूरी है। कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, मेनोपॉज की बात हम करें और कैल्शियम की बात ना करें तो ये तो हो ही नहीं सकता। कैल्शियम सप्लीमेंटेशन इज रियली रिक्वायर्ड, क्योंकि कितनी भी अच्छी डाइट ले लें हम, अमाउंट ऑफ कैल्शियम रिक्वायर्ड इज हायर एज कंपेयर टू व्हाट वी कैन टेक इन आवर डाइट। सो वो भी जरूरी है। कैल्शियम के साथ और भी सप्लीमेंटेशन, आजकल मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन भी हम देते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान देनी पड़ती हैं। ओके। और ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं तो मेमोग्राफी एक वर्ड आता है, तो वो कितना फ्रिक्वेंटली करना चाहिए? क्योंकि कुछ मैंने जो सुना है कि आई थिंक आफ्टर 40 और 45 यू शुड गेट इट डन एवरी ईयर। इज दैट ट्रू? नहीं, ऐसे हर किसी को एवरी ईयर मेमोग्राफी करने की जरूरत नहीं है। ओके। तो क्या क्राइटेरिया होता है? दोनों मेमोग्राफी होती है। मेमोग्राफी अलग होती है, एक अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट, दैट कैन बी डन वेन एवर यू आर गोइंग फॉर अ हेल्थ चेकअप। बट अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं है कैंसर की, कोई एग्जामिनेशन पे कोई लंप नहीं है, गांठ नहीं है, कुछ भी एबनॉर्मल साइन नहीं है, तो हर साल मेमोग्राफी करने की जरूरत नहीं होती है। बट अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट कैन बी डन ड्यूरिंग हेल्थ चेकअप्स. And then now there are a lot of infertility cases are also coming up. Infertility is on a rise everywhere. Even in India, if you see worldwide, it's on a rise now. What do you think? What are the contributing factors for that? Most important, age factor. पहले शादी टाइम पे थोड़ा जल्दी होती थी, अभी शादी 30 के भी और लेट होती है। बेस्ट टाइम, बेस्ट फर्टाइल पीरियड 20 से 30 तक होता है। अभी 30 पे तो लोग सोचना शुरू करते हैं, अच्छा हम शादी करेंगे, फिर शादी करेंगे, फिर उसके बाद एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग में उनको टाइम चाहिए, उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान करेंगे, तब तक तो 35 के ऊपर हो जाते हैं। तो एज सबसे बड़ा फैक्टर है। और उसके बाद दूसरी चीज है कि प्रेगनेंसी होने के बाद भी, कभी कभी शादी के इमीडिएटली बाद जब प्रेगनेंसी हो जाती है, उसको बहुत सारे लोग अबॉर्ट करने की उसमें रहते हैं, नहीं अभी हम तैयार नहीं हैं। सो फिर जब वो तैयार होते हैं तब बॉडी तैयार नहीं होती है। राइट। और डू यू थिंक इस इनफर्टिलिटी की तरफ एक और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जो कि मेंटल स्ट्रेस है आज के टाइम में? क्योंकि लॉट ऑफ वुमेन टुडे आर वर्किंग, अब वो ऑफिस में भी काम करती हैं, फिर घर पे आके भी उनको काम करना होता है, क्योंकि जैसे कि इंडियन अपना अपब्रिंगिंग है कि मेन विल नॉट वर्क, दे विल नॉट कंट्रीब्यूट एट होम, तो फीमेल्स को ही आके घर पे भी काम करना पड़ता है, एंड इन लॉज का भी ख्याल रखना है, अपना भी ख्याल रखना है, काम भी करना है, एवरीथिंग, एंड दैट मेंटल स्ट्रेस इज अ लॉट. सो डू यू थिंक दैट मेंटल स्ट्रेस इज अ वेरी बिग कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टुवर्ड्स इनफर्टिलिटी? यस, मेंटल स्ट्रेस तो है ही, दैट इज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर एवरीथिंग. अगर घर के अंदर लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है
तो भी वो मेंटल स्ट्रेस उसका कॉज है। मेंटली अगर रिलैक्स हैं, अगर बेस्ट सिचुएशन की मेंटली रिलैक्स भी हैं, घर में भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर हो रही हैं, सब चीजें हैं, दैट इज द बेस्ट कंडीशन। लेकिन अगर घर में अलग तरह से माहौल है, एवरी बर्डन इज ऑन द फीमेल, तो शी विल बी स्ट्रेस, शी विल मेंटली नॉट बी प्रिपेयर्ड कि वो अपना बच्चा कैरी करके उसको पाल सकती है, नहीं कर सकते हैं वो लोग। तो ये तो स्ट्रेस तो बहुत बड़ा फैक्टर है। हर प्रॉब्लम का अगर एक रीजन ढूंढना है तो स्ट्रेस है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। So can you tell our audience a few ways how can they manage that stress? स्ट्रेस मैनेजमेंट तो बहुत बड़ा टॉपिक है, एंड कुछ 2-3 प्रैक्टिसेस जो वो करना शुरू कर हर सकते हैं। लेवल पे स्ट्रेस को मैनेज करना है। फिजिकल बॉडी के लेवल पे स्ट्रेस को मैनेज करना है। सबसे पहले वी कैन स्टार्ट विद द हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस डाइट, जिस खाने को खाने के बाद हमारी बॉडी उसे इजीली डाइजेस्ट कर सके। वी फील मोर एनर्जेटिक आफ्टर ईटिंग द फूड, इट विल गिव लेस स्ट्रेस टू द बॉडी। अगर हम ऐसा हेवी खाना खाते हैं जो बहुत फ्राइड है, बहुत ऑयली है, बहुत रेगुलरली हम ऐसी चीजें खा रहे हैं, या बाजार से मंगा के जंक खा रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी को फिजिकल लेवल पे स्ट्रेस देता है। एंड जो फिजिकल बॉडी पे स्ट्रेस आता है वही फिर हमारे इमोशंस पे, माइंड पे वो सब चीजें काम करने लगती हैं। तो हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आप अपनी डाइट पे काम करेंगे, योगा करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे, डांस करेंगे, कुछ भी करेंगे जहां कैलोरी बर्नआउट कर सकते हैं। स्ट्रेस की बात जब करते हैं तो वो बेसिकली हम समझते हैं कि माइंड का स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस, दैट इज ऑब्वियसली देयर। तो जब लेकिन शुरुआत उसको मैनेज करने के लिए हमें प्रैक्टिकल चीजों से स्टार्ट करना पड़ता है। और मेंटल स्ट्रेस के लिए फिर सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका मेडिटेशंस है, अपना जो भी डिवाइन आपकी प्रैक्टिसेस है, आप जिस भी भगवान के साथ रेजोनेट करते हो आप उनके साथ कनेक्ट करो, पूजा का जो भी आपका तरीका है वो करो, या चैंट करो, या बात करो। ऑल दीज थिंग्स गिव अ स्ट्रेस फ्री लाइफ। एक फेथ होना बहुत जरूरी है किसी भी हायर पावर में, या अपने अंदर, या अपने सबकॉन्शियस में। फेथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सब अच्छा हो जाएगा, गॉड इज ऑलवेज विद मी, जस्ट लर्न फ्यू ऑफ दीज थिंग्स, अफर्मेशंस करते रह सकते हो। यस, एवरीथिंग विल बी गुड, ऑल इज वेल, जैसे आमिर खान ने बोलते रहे ना, ऑल इज वेल एंड एवरीथिंग हैपेंड वेल। राइट। स्ट्रेस को तो कम करने के जो भी तरीके कर सकते हैं हम वो करें। आई थिंक यहाँ पे स्ट्रेस कम करने की जब बात आ रही है, जो मेरा पर्सपेक्टिव है, मे नॉट बी राइट, आई थिंक वुमेन को अपनी एक हेल्दी बाउंड्री सेट करना भी बहुत जरूरी है। दे शुड नो what they can do, what they cannot do, and they really should be able to communicate it to their family members also. Because sometimes हम लोग कम्युनिकेट कर नहीं पाते हैं उन चीज़ों को, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला उस चीज़ को समझे। वो समझता नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि उनको कोई भी क्यों समझेगा, वो हमारा माइंड तो नहीं पढ़ सकते हैं ना ऑब्वियसली। तो लेकिन हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड मोर यू नो वो मेंटल प्रेशर बढ़ता चला जाता है, कहीं ना कहीं फिर वो ना एक्सप्लोड करता है एक दिन, क्योंकि अब जो चीज़ भर रही है वो कभी ना कभी तो वो घड़ा फूटेगा ही फूटेगा। एंड दैट इज़ द टाइम आई थिंक इतने सारे जो डिवोर्स केसेस आजकल सुनने को मिल रहे हैं, इतने ज़्यादा सेपरेशंस जो हमें सुनने को मिल रहे हैं, आई थिंक दैट इज़ अ रियल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। दैट इज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। बाउंड्रीज सीखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाउंड्रीज हर चीज के लिए जरूरी है। अपने रिलेशन, फैमिली में भी रिलेशन में जरूरी है, और फ्रेंड्स के साथ भी है, नेबर्स में भी बाउंड्रीज है, और अपने खुद के लिए भी बाउंड्रीज जरूरी है। क्योंकि आजकल इंटरनेट की एरा में हम हर चीज जो भी देखते हैं ना, मन करते हैं ये भी हम कर सकते हैं, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो जो एक होते हैं ना कंटेंटमेंट नहीं है, वो भी सब चीजें आने लगती हैं। तो बाउंड्रीज हर लेवल पे जरूरी है कि हम क्या चाहते हैं अपने आप से, उसको भी एक रिस्ट्रिक्ट करना है, कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं कह रही मैं कि गोल्स नहीं होने चाहिए, बट इट शुड बी फोकस्ड। एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी उन्हें पता होना चाहिए यू नीड योर ओन स्पेस। अगर एक और चीज है, सेल्फ केयर और सेल्फ लव, ये सब चीजें बड़ी कंफ्यूज करती हैं। अगर कुछ लेडीज अपनी केयर कर रही हैं, अपना ध्यान रख रही हैं, तो उन they feel as if it is selfish. They need to understand self care and self love is not selfish.
So it is self love, it is important. तो डॉक्टर रितु, क्योंकि ये सवाल आया है कि बहुत सारी फीमेल सोचती हैं अगर मैं खुद का ख्याल रखूंगी तो इट इज बीइंग सेल्फिश, आप उनको एक अच्छे से वो सेपरेट करके बता सकते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली सेल्फ लव एंड वेयर इज दैट बाउंड्री फ्रॉम वेयर इट बिकम्स सेल्फिश, व्हाट इज that differentiation between both of them so that they don't feel guilty while they are loving themselves? Feeling guilty is a pattern. वो एक आदत है, जो गिल्ट का एक पैटर्न आ जाता है, किसी भी चीज के लिए कोई भी गिल्टी हो सकता है, एंड दैट इज अ इनहेरेंट पैटर्न. सेल्फ केयर की भी जो बात आती है वो भी एक पैटर्न की तरह से मैं देख रही हूँ फीमेल्स के अंदर. हमारे पास बहुत सारी लेडीज आती हैं जो अपने बच्चों के लिए ना बहुत जी जान से कर रही हैं, ये भी 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 कर रही हैं, और खुद की बात अपनी आयरन कैल्शियम खाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है. हाँ, मेरे को टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता नहीं होता है. दे डोंट प्रायोरिटी देयर प्रॉब्लम्स, दे डोंट प्रायोरिटाइज देयर पेन, देयर बैक, उनकी प्रायोरिटी में नहीं है. अब वो प्रायोरिटी में क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने बचपन से सीखा नहीं है. उनसे पूछो आपकी मम्मी अपना केयर करती थी? ना ना ना, मेरी मम्मी नहीं करती, मैं उनको कहती रहती हूँ पर वो करती नहीं है. ना तो मदर ने किया, ना तुम कर रहे हो, एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपकी डॉटर जब वो 35 की होगी वो केयर करेगी. उसने सीखा ही नहीं कि अपनी केयर करना है. तो ये एक पैटर्न चलता रहता है जो कि इनहेरिट करती हैं फीमेल्स हमारी, कि जैसे मम्मी अपनी केयर करने की जरूरत नहीं समझती, हमें भी जरूरत नहीं है, बट माई डॉटर शुड टेक केयर. पर ऐसा कभी नहीं होगा. हर किसी को समझना है एक चीज, कि जो आप अपने बच्चों को समझाना चाहते हो, सिखाना चाहते हो, यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल. आपको अपनी केयर करनी है, अपना रूटीन मेडिकल चेकअप करना है तो आपको करना है, आपको रेस्ट करना है तो आपको करना है, आपको वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, टाइम देना है. एवरीबडी इन द फैमिली शुड बी टेकिंग केयर ऑफ देयर वर्क. ओवर डिपेंडेंस हर किसी की ऑन द फीमेल ऑफ द हाउस will obviously burden the female, और जो बच्चे हैं और जो बड़े हैं वो अपने आप के लिए भी इनकैपेबल रह जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता क्या करना है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट, बाउंड्रीज भी, और वहीं पे फिर सेल्फ लव और सेल्फ केयर सब आ जाता है. एग्जैक्ट कोई शार्प बाउंड्री हम नहीं बना सकते, क्योंकि फैमिली डायनामिक्स में बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं. आज कोई चीज प्रायोरिटी है तो किसी चीज को थोड़ा कम प्रायोरिटी किया जा सकता है, कल ये प्रायोरिटी है तो दूसरी चीज को मैनेज किया जा सकता है. इट इज अ मैनेजमेंट. राइट. यहाँ पे ना मुझे एक स्टोरी याद आ गई जब आपने इसके बारे में, सेल्फ लव के बारे में बात करी. उस स्टोरी में क्या था कि एक दो फीमेल्स हैं बेसिकली. सो देयर इज दिस वन फीमेल, उसकी फ्रेंड शी डाइज at a young age, like 40 years of age. अब उसके बच्चे भी हैं, हस्बैंड है, सब कुछ है. और अब ये जो फीमेल है ये सोचती है कि अरे दैट माय फ्रेंड हैज़ गॉन अवे, उनके जो हस्बैंड है ही मस्ट बी डेवस्टेटेड नाउ, बहुत ही बुरी हालत में होंगे, पता नहीं कैसे मैनेज कर रहे होंगे घर को, सारी जिम्मेदारी तो उसी के ऊपर थी, पूरा घर तो उसी ने अपने ऊपर उठाया हुआ था, बच्चों का भी सब कुछ वही कर रही थी. सो शी थॉट कि मुझे कॉल करना चाहिए एंड आई शुड एक्सटेंड माई हेल्प टूवर्ड्स हिम. उन्होंने कॉल किया एंड इट वाज जस्ट अबाउट अ वीक आफ्टर शी वाज डेड. तो उन्होंने फ़ोन किया, उनसे पूछा कि कैसे हैं आप, सब कुछ कैसे मैनेज हो रहा है एंड ऑल दैट. तो उन्होंने बोला नहीं ठीक है, सब कुछ मैनेज हो रहा है, हमने बाई रख ली है अपने घर पे, वो सब कुछ कर रही है, बच्चे, हमने ड्राइवर रख लिया है तो बच्चे भी मैनेज हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं. हम लोगों को लगता है कि सारा घर हमारे ऊपर है, सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, लेकिन जिस दिन हम चले जाएंगे ना, देयर आर मेनी पीपल हु कैन टेक केयर ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. एग्जैक्टली. बस जब यहाँ ये स्टोरी समझ जाएंगे तो सेल्फ लव अपने आप आ जाएगा कि अपनी केयर हमें करना है, ये जीवन हमारा अपना है, वी हैव टू लिव इट. ऑब्वियसली वी हैव टू टेक केयर ऑफ द फैमिली, बट जीवन तो अपना है. परफेक्ट स्टोरी. और ऑब्वियसली जो हमारे पास नहीं है वो हम दूसरे को कैसे दे सकते हैं? अगर मैं ही बीमार हूं, मैं अपनी फैमिली को कैसे हेल्दी रख सकती हूँ? I have to be healthy myself first. I should be happy myself first. Then only I can spread happiness around me. So now let's proceed to the next stage, which is a menopausal stage. So age 40 and beyond that. तो अभी मैं भी 40 की हो चुकी हूँ.
उसके बाद अब मुझे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? व्हाट इज द टाइम व्हेन मेनोपॉज स्टार्ट्स हिटिंग? और हाँ, सबसे पहले यही बताइए कि सबसे पहले वो एज क्या है जब मेनोपॉज हिट करता है? सबसे पहले तो हम मेनोपॉज क्या है ये समझ लेते हैं। बिल्कुल। मेनोपॉज का मतलब है कि जब आपको पीरियड आना बंद हो जाता है और इन अ कंटिन्यूएशन आपको 12 मंथ्स तक पीरियड नहीं आता है, यू मिस 12 पीरियड्स, दैट इज मेनोपॉज। तब हम क्लियर कर देते हैं इट इज मेनोपॉज। बट कब हिट करेगा, कब ऐसा होगा, पता नहीं है। कोई भी लेडी अगर 42 पे आ रही है या 45 पे आ रही है एंड शी सेज कि मेरे को मेनोपॉज कब आएगा, हमें नहीं पता। कि हो सकता है उसको अगले महीने से पीरियड बंद हो जाए, लेकिन वंस पीरियड्स आर स्टॉप only then we can get some tests and we can find out whether it is menopause or whether it is just a missed period because of some other reason. ओके, तो आपने बोला कि जब 12 पीरियड्स मिस होते हैं दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज बाय डेफिनेशन। अगर ऐसा भी होता है कि 6 मंथ्स पीरियड्स नहीं आए, उसके बाद फिर 1 मंथ आ गए, उसके बाद अगेन 6 मंथ्स नहीं आए, सो इज दैट आल्सो अ मेनोपॉज और इट्स जस्ट a regular period? It is perimenopause, but it is not menopause. Once it is decided, it is there, like 12 periods are missed, 1 year complete is gone between the 1 year completely gone after that last period, उसको हम मेनोपॉज बोलेंगे। जो पॉइंट यहाँ पे बोला उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर करना चाहती हूँ। अगर 6 महीने पीरियड नहीं आया और उसके बाद पीरियड आ गया, नाउ व्हाट टू कंसिडर इट? ऑब्वियसली इट इज नॉट मेनोपॉज बट इट नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड। ओके। अगर 6 महीने का गैप होके किसी भी स्टेज पे, चाहे वो 35 है, चाहे वो 40 है, चाहे वो 45 है, 6 महीने का गैप होने के बाद पीरियड आ गया है, तो वो पीरियड क्यों आया है, 6 महीने का गैप होके क्यों आया है, इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। यू हैव टू गो टू द डॉक्टर, गेट एन अल्ट्रासाउंड डन एंड सम अदर टेस्ट। ओके, ठीक है। और फिजियोलॉजिकली क्या क्या चेंजेस होते हैं उस टाइम पे? जैसे हमें पता है प्यूबरिटी के टाइम की हमने बात कर लिया, उसके बाद की भी हमने बात कर लिया, वी नो व्हाट काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आर हैपनिंग इन आवर बॉडी, बट व्हेन वी टॉक अबाउट मेनोपॉज व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट? जब प्यूबर्टी आती है ना, फिजियोलॉजिकल चेंजेस में होता है कि ओवुलेशन शुरू होती है। हर महीने आपका ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में आता है। जैसे कि हमने पहले बात की, शुरू में 1-2 साल लगते हैं वो सेटल होने में। इसी तरह जब मेनोपॉज आता है, मेनोपॉज का मतलब है कि आपका जो पीरियड आ रहा है, जो ओवुलेशन हो रही थी, वो ओवुलेशन अब प्रॉपरली नहीं हो रही है। वो एक्सेस बॉडी का हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस जो सिस्टम है पूरी बॉडी का, वो चेंज हो रहा है। तो इसी तरह से जब पीरियड बंद होना है मेनोपॉज में, तो वो भी धीरे धीरे वो हार्मोन्स में डिक्लाइन आना शुरू होता है और वो धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। इरेगुलरिटीज कई बार आ जाती है। इरेगुलरिटीज कैन बी बिकॉज ऑफ periods also, menopause also, and there can be other reasons also. So अगर कोई भी irregularities आ रही हैं पीरियड में, तो you should go to the doctor. ओके। और मेनोपॉज के टाइम पे हॉट फ्लैशेस होना और मूड स्विंग्स होना, ऐसा भी कुछ होता है? यस, वही, ये जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जब हार्मोन्स डिक्लाइन करते हैं, तो मूड स्विंग्स, हॉट फ्लैशेस, इरिटेशन और बहुत अजीब सा माइंड में बड़े चेंजेस महसूस होते हैं, कंफ्यूजन, घबराहट, बहुत सारी चीजें फील होती हैं। एंड these are symptoms of menopause. एंड हॉट फ्लैशेस से बहुत सारे लोग बहुत परेशान होते हैं। आई वॉन्ट टू टेल देम, हॉट फ्लैशेस इज अ टेम्परेरी थिंग। जितना इस पे ध्यान कम देंगे उतना ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगी। जितना ध्यान देंगे, अरे मुझे ये हो गया, मुझे ये हो गया, वो उतना ज्यादा परेशान करते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा अगर परेशानी हो रही है, यू शुड डेफिनेटली गो टू द डॉक्टर, गेट सम मेडिसिन विच कैन बी गिवन एज पर योर स्पेसिफिक कंडीशन। लेकिन हॉट फ्लैशेस होना इज अ नॉर्मल थिंग। ओके। तो ये सब जो सिम्टम्स है, ये कितना टाइम तक चलते हैं? मतलब जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक चलेंगे या फिर देयर इज अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड? हॉट फ्लैशेस इज टेम्परेरी। ओके, एंड व्हाट अबाउट द अदर थिंग्स? Other things like
जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उनका इम्पैक्ट बोन्स पे भी आने लगता है। बोन्स की डेंसिटी फॉल करने लगती है, तो बोन डेंसिटी कम होने से अब वो टेम्परेरी नहीं है, वो ऐसे धीरे 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 कम होती जाती है, ओल्ड एज तक कम ही होती जाती है। सो बोन प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है फीमेल्स के लिए, जो कि मेनोपॉज के बाद नेक्स्ट 10 इयर्स में बहुत स्पीड से बोन डेंसिटी लॉस होती है। सो हड्डियों में कैल्शियम को मेंटेन करना इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डू यू थिंक एक्सरसाइज ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग बोन डेंसिटी, अगर शुरुआत से ही कर रहे हैं, या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट? ओके, बिकॉज जब हम अपनी फैमिली का इतना ज्यादा ख्याल रखते रहते हैं ना, तो एक्सरसाइज इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेल्फ लव। हम सेल्फ लव तो करते नहीं है, वी थिंक दैट नो, दैट इज बीइंग सेल्फिश। अगर मैं जाके जिम में बैठी हुई हूँ और बेटे को घर पे खाना चाहिए या उसको ऑफिस जाना है और मैंने उसका बैग पैक करके नहीं दिया है, ऑफिस बैग, तो आई एम बीइंग सेल्फिश। और कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं हम, और फिर जब ओल्ड एज आती है उस टाइम पे फिर हड्डियों में यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, एंड देन वी थिंक के शायद कर लेना चाहिए था उस टाइम पे। एक्सरसाइज करनी है, ये पैटर्न फैमिली से आया होता है कि मम्मी ने भी कभी नहीं अपनी केयर की होती है, तो बच्चे भी नहीं कर रहे होते हैं, और बच्चों को सिखा भी यही रहे होते हैं कि आपको ऐसे अपनी केयर करनी नहीं है। एक्चुअल में जब मदर खुद से केयर करती है तो बच्चे को पता है कि हाँ, दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ लाइफ। और देखो, अगर कोई भी फीमेल एक्चुअल में चाहती है, शी हैज टू टेक केयर ऑफ हर बॉडी, तो वो कर सकती है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करते हैं, कहीं गॉसिपिंग में टाइम स्पेंड करते हैं, कहीं फोन पे टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर प्रायोरिटी है कि मुझे अपनी केयर करनी है, तो वो प्रायोरिटी से हो सकती है, दिस इज अ पॉसिबिलिटी, बट मोस्टली लोग नहीं कर पाते हैं। राइट। सो एज यू नो, मेन भी हमारे ऑडियंस हैं, इवन दे मस्ट बी वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ पे, कि वो किस तरीके से उस टाइम में फीमेल्स को सपोर्ट कर सकते हैं? मे बी इट्स देयर मदर, मे बी इट्स देयर वाइफ, सो हाउ कैन दे रियली सपोर्ट इन दिस टाइम ऑफ hormonal chaos which is happening in our life? सबसे पहली चीज तो अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। अगर वो अवेयर है इस चीज के लिए कि हार्मोनल चेंजेस इतना ज्यादा इम्पेक्ट कर रहा है फीमेल को, तो तभी वो उसको हेल्प कर पाएंगे। और दूसरी चीज है रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग। तो पहले अवेयरनेस है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहे हैं। अगर इतना हो गया तो लाइफ वैसे तो पहले ही जन्नत बन जाएगी, लेकिन उसके बाद भी अगर करना चाहते हैं तो दे शुड स्टार्ट डूइंग देयर एक्सरसाइजेज एंड मेडिटेशंस टुगेदर। दे कैन हेल्प देयर मदर। मदर्स के लिए बड़ा मुश्किल है कि अगर कोई सुन रहे हैं, उनकी मदर 50, 55, 60 ईयर्स की एज की है, और अगर वो मदर को कहते हैं मम्मा एक्सरसाइज करो, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, अपने आप से आती नहीं, कर नहीं सकते, कहीं बाहर जाके कहीं ज्वाइन करके करना वो मुश्किल होता है। मैं अपनी चीज शेयर करूंगी, मैं थोड़ी सी लापरवाही करती थी, तो मुझे जिम जाने के लिए मेरे बेटे ने मोटिवेट किया, और उसने कहा नहीं मम्मी जाओ जाओ जाओ, तो आई स्टार्टेड गोइंग जिम, जबकि मुझे खुद से योगा इन सब कुछ आता है, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन, सम अदर प्रायोरिटीज, इवन आई वॉज मिसिंग दिस फॉर सम टाइम। तो दैट मेल्स कैन डेफिनेटली डू फॉर देयर मदर्स, और बहुत आराम से आपकी मदर आपकी बात मान जाएंगी जब आप एक्चुअल में सिंसियरली उनको करने के लिए मोटिवेट करोगे। मदर भी मानेंगी, वाइफ भी मानेगी, सिस्टर भी मानेंगी, सब लोग मानेंगे। तो मेल्स का बहुत इक्वल रोल है। मेनोपॉज तो शायद मेनोपॉज तो एक ऐसी चीज है जिससे हर किसी को पता होना चाहिए, नॉट ओनली फीमेल्स, सभी पूरी दुनिया के 8 बिलियन लोग इससे इम्पैक्ट होते हैं। जो फीमेल्स हैं, आधी जनता फीमेल है, उन्होंने तो इससे पास करना है, और बाकी जो मेल्स हैं, लड़के हैं, उन लोगों की या तो मदर मेनोपॉज से क्रॉस करते हुए वो देखेंगे, या तो उनकी वाइफ मेनोपॉज से पास कर रही है। कहीं ना कहीं तो मेनोपॉज उनकी जिंदगी के अराउंड घूमता ही रहता है, तो दे शुड बी अवेयर। अच्छा डॉक्टर रितु, जब मेनोपॉज हो जाता है ना, आई थिंक देयर आर मेनी वुमेन हु थिंक दैट दे आर नॉट अट्रैक्टिव नाउ, दे डोंट फील ब्यूटीफुल इन देयर ओन बॉडी। उस चीज को कैसे चेंज किया जा सकता है? व्हाट आर द प्रैक्टिसेस दैट वुमेन कैन डू टू रिमेन अट्रैक्टिव और फील अट्रैक्टिव, रादर आई वुड से?
फील अट्रैक्टिव, फील इज इम्पोर्टेंट। Feel is important, yes. अगर हम फील की डिटेल में जाएंगे तो जिनको अभी ये फील हो रहा है मेनोपॉज के बाद आई एम नॉट दैट अट्रैक्टिव, तो शायद उनको कहीं अपने यंग एज में भी ये फीलिंग जरूर रही होगी, आई एम नॉट दैट अट्रैक्टिव। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, होती है। और दूसरा, एक एज के बाद ना सिर्फ स्किन का खूबसूरत होना ही सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, द inside character should be more important, that is the most important thing। physical body की attractiveness के लिए तो they can go into their yoga practices and their gym and they can eat healthy so that their skin can glow and all these things can be done, but internally they should evolve themselves so that they should be able to feel the beauty inside। क्योंकि हमारी बॉडी, हम सिर्फ स्किन और बॉडी और मसल और फैट और बोन्स हो रही हैं, वी आर मच मोर देन दैट, वी आर द सोल। सो अट्रैक्शन इज द सोल। सो हमें उस मेनोपॉज के बाद जब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, आपके हार्मोन्स में भी चेंजेस आ गए हैं, आपके हार्मोन्स आर नॉट दैट टाइप ऑफ हार्मोन्स, सो you should be focusing more on self evolution, self growth, spiritual journey, so that you will feel connected to your own self। जब अपने आप से कनेक्ट करोगे तो वो फील नहीं आएगी कि आई एम नॉट अट्रैक्टिव, पीपल आर नॉट टॉकिंग टू मी बिकॉज आई एम नॉट अट्रैक्टिव, ये सब चीजें नहीं आएंगी। जो भी काम करना है वो तो अंदर करना है। Right. And do you find any cases menopause के बाद लेडीज को एंजाइटी या डिप्रेशन जैसे कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं? होता है क्या ऐसा? होता है। उसमें बड़े इंपॉर्टेंट, बहुत डीप क्वेश्चंस हैं ये जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो, दीज आर रियली वंडरफुल, दिस इज वेरी कॉमन, लेकिन उसको हम टैकल नहीं करते हैं, वो एड्रेस भी नहीं होते। जो फीमेल बचपन से अभी तक, बच्चों के बचपन से अभी तक इतने काम में बिजी होती हैं, बिल्कुल अपने लिए टाइम नहीं होता। अब वो बच्चे कॉलेज जाने लगते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, रिस्पॉन्सिबल बच्चे हैं, सब कुछ है, तो भी होता क्या है कि जो इतने बिजी थे बच्चे जब घर में रहते थे, उनकी पढ़ाई, उनकी सब एक्टिविटीज पे काम करना था, अब बच्चे आपको इतना बिजी नहीं रखते, आप खाली होने लगते हो। लेकिन ये तो पता नहीं है कि अब करना क्या, खाली हो गए, या तो सोशल मीडिया या तो गपशप मारनी है, लेकिन अपने काम को प्रोडक्टिव नहीं ले जाते। तो अपने आप को प्रोडक्टिव अगर रखते हैं तो ये डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटीज कम आती हैं। दिस इज वन पॉइंट। लेकिन फिर भी बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दिस फेज, आई नो एक टाइम ऐसा आता है, मेरी लाइफ में भी आया था, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो वो बात लूप की तरह मेरे दिमाग में घूमती रहती थी। मतलब मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूं, इतनी छोटी सी बात है। फ्रॉम अगर मैं अपना कहूं कि बचपन से मैं बहुत ज्यादा चीजों को ऐसे इतना माइंड नहीं करती थी, बट ड्यूरिंग दैट पीरियड ऐसे लूप बिल्कुल चलती रहती थी। हफ्ता निकल गया तो भी वही बात किए जा रही हूँ। देन आई गेव इट अ टर्म, मेनोपॉज माइंड। तो ये एक मेनोपॉज के टाइम पे माइंड में ऐसे हो जाता है। उसके बाद जब मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, अपने अंदर सेल्फ पे सब चीजों को समझा, देन अगेन आई एम बैक टू नॉर्मल, जैसे मेरा पहले था। आई एम मोर कंफर्टेबल देन दैट। लेकिन ये एक फेज है, अगर ऐसा हो रहा है तो ये समझने की जरूरत है, समथिंग नीड्स टू बी चेंज्ड इनसाइड। प्लानिंग, आगे क्या करना है। अगर 45 पे मेनोपॉज आया है तो मान के चलें कि अगले 40 साल 80-85 तक, क्योंकि आजकल लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, तो अगले 40 साल आपको प्रोडक्टिव रहना है, आपको यूजफुल काम करना है, अपने आप को बिजी करना है। अपनी हॉबीज को ढूंढिए, जो बचपन में चीजें आप करना चाहते थे, आप पेंटिंग करना चाहते थे, आप कढ़ाई करना चाहते थे, आप सिंगिंग करना चाहते थे, अपनी हॉबीज को ढूंढिए, अपने आप को उन सब चीजों में बिजी कीजिए जिससे कि आपको अच्छा लगेगा जो आप करना चाहते थे, और ये डिप्रेशन, एंजाइटी तो आसपास नहीं आएंगे। सो यू हैव टू टेक केयर। एंड एक और चीज होती है जो अभी हमने बात की, बच्चे बिजी हो जाते हैं। सो इसके लिए एक टर्म कॉइंड है, उसे बोलते हैं एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम, यानी कि बच्चे
घोंसला छोड़ के उड़ जाते हैं, तो खाली रह गए हस्बैंड वाइफ। सो एम्प्टी नेस्ट को अपनी एक्टिविटीज से आपको फिल करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। किसी भी चीज में आप कर सकते हो, कुछ भी लर्न आजकल घर से करना है, घर से करो। कहीं बाहर जाके ज्वाइन करके कुछ सीखना है, सीखो, डेवलप न्यू स्किल्स। ये तो आई से इट बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड इनिंग ऑफ लाइफ। डू इट। सो ब्यूटीफुल आपने बोला सेकेंड इनिंग्स ऑफ लाइफ, क्योंकि इस टाइम पे जो भी फीमेल्स है ना, इवन मेरी मम्मी है, मैं उनको देखती हूँ सब कुछ करना बंद कर देते हैं, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बहू आ जाती है घर में, या फिर आजकल वही है कि सब अच्छा कमाते हैं तो मेड्स वेट्स होती हैं सारा काम करने के लिए, एंड दे आर एम्प्टी माइंडेड नाउ। बस सब Yes. कुछ, बस फिर वो खामियां निकालते रहते हैं, इसने ये गलती करी, उसने वो गलती करी, उसने ये किया, एंड ऑल द टाइम दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दोस थिंग्स। Exactly. और उनको अगर हम कुछ बोलें, इनफैक्ट अगर फोन, एक सिंपल सी चीज है फोन, स्मार्टफोन, वो सीखने के लिए भी हम बोलेंगे ना, बोलेंगे नहीं हमारी तो एज हो गई है, ये कोई एज है नई चीजें सीखने की, हमारे बस का नहीं, हमें नहीं सिखाओ, हमें नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं एक चीज कहूंगी, आई एम ब्लेस्ड, माई मदर इज नॉट लाइक दैट। माई मदर इज टेकिंग सो मेनी इनिशिएटिव्स। At the age of 72, she started making her YouTube videos. She learned how to record. She purchased her laptop वाह, after 72, maybe 73 पे उन्होंने परचेज किया था। She learned everything. She is recording her videos. She is putting her videos. She is running 2 channels of her. One wow. of them is monetized also. And now she is 77 and she is still enthusiastically doing her work. So if my mother can do, अगर मुझे कभी लगता है मैं मुझसे नहीं होगा, so मुझे क्या ख्याल आएगा, if my mother can do it 77, at least I can do at this stage. So I don't give up. I don't want to give up. That is the thing I am telling हर लेडी को, अपने अंदर चेंजेस करने हैं। बच्चे अपने आप ही कर लेंगे, बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता, सिर्फ अपने अंदर चेंजेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट। सो हमने इतनी सारी मेनोपॉज की जब बातें करी, तो आई थिंक ना मोस्टली सारे नेगेटिव पॉइंट्स ही सामने आते हैं कि हॉट फ्लैशेस होने शुरू हो जाते हैं, फिर बॉडी की बोन डेंसिटी डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, और फिर डिप्रेशन वाली चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। बट आई एम श्योर एवरी स्टेज हैज़ अ पॉजिटिव thing also in it. So according to you, what is that one positive perspective which comes with menopause? There are many. ये तो मतलब हर चीज के, हर कॉइन के हमेशा 2 पहलू होते ही हैं। हम इधर देख रहे हैं कि इधर से देख रहे हैं, मेनोपॉज आ गया, आपको हर महीने पीरियड नहीं आएगा, आपको टेंशन खत्म, यू आर फ्री बर्ड, कंफर्टेबल हो। मेनोपॉज आ गया, प्रेगनेंसी के डाउट्स, चिंता नहीं है। इफ यू आर स्टिल एक्टिव, यू कैन रिमेन एक्टिव इन योर पर्सनल मैरिटल लाइफ। मेनोपॉज हो गया, बच्चे अपनी जिम्मेदारी लेके अपना अपना काम कर रहे हैं, आप फ्री हो, आप एक्टिव हो, आपने अपने आप को फिट मेंटेन किया है, यू आर स्टिल यंग, यू कैन एंजॉय लाइफ, यू कैन पूरे दुनिया घूम सकते हो, क्योंकि अब आप इतने छोटे भी नहीं हो कि बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, और इतने बूढ़े नहीं हो कि आपके पैर दर्द करने आप चल नहीं सकते। सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू रोम अराउंड, पूरी दुनिया घूमिए, आप नई स्किल सीखिए, सब चीजें कर सकते हैं। मेनोपॉज तो एक जस्ट जो मैंने अभी बोला, बिगिनिंग द सेकेंड इनिंग, इट इज नॉट एंड ऑफ लाइफ, इट इज नॉट अ पॉज, इट इज द बिगिनिंग ऑफ द न्यू लाइफ। अब उस न्यू लाइफ को डिफाइन आपने खुद करना है कि आप उस नई लाइफ को कैसे डिफाइन कर सकते हो, आप कैसे प्रोडक्टिव हो सकते हो, आप कैसे लोगों को मदद कर सकते हो, आप कैसे अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। एग्जैक्टली। जब KFC के राइट, KFC के ओनर अगर 72 की एज में KFC खड़ा कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली हम भी कर सकते हैं। 45 पे तो आप कुछ भी कर सकते हो। एग्जैक्टली। तो जमाना बदल गया, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, सब कुछ सीख सकते हो, कुछ भी। जस्ट यू नीड टू प्लान, क्या करना क्या है, क्या डिजायर है, क्या हॉबी है। तो मेनोपॉज इज जस्ट अ ट्रांजिशन फेज, राइट, जहां जिम्मेदारियां ज्यादा जिम्मेदारियों से कम जिम्मेदारियों पे आ रहे हैं हम।
एब्सोल्युटली। मेरा एक क्वेश्चन है, शायद बहुत सारे लोगों का होगा ये क्वेश्चन, कि सेक्सुअल एक्टिविटी पे मेनोपॉज डिपेंड करता है क्या? वुमेन हु आर मोर सेक्सुअली एक्टिव, उनका मेनोपॉज लेटर स्टेज पे, लेटर एज में होता है, ऐसा कुछ है? इज दैट अ फैक्ट और इट्स अ मिथ? इट्स अ मिथ। ओके, एनी अदर मिथ्स दैट यू वांट टू बस्ट अबाउट मेनोपॉज? आई डोंट नो मेनी मिथ्स, बिकॉज मेरे को तो साइंटिफिकली चीजें पता है, आप पूछो। ओके, नहीं ये वाला मैंने काफी सुना हुआ है कि अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो मेनोपॉज लेट स्टेज में होता है, तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू। नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, ठीक है। चलिए, अब इतनी सारी बातें हुई हैं, नाउ लेट्स डू अ लिटिल फन रैपिड फायर राउंड। श्योर। छोटे छोटे क्वेश्चंस, छोटे छोटे आंसर्स। ओके, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक ऐसी वेलनेस प्रैक्टिस जो आप कभी भी स्किप नहीं करते हो, चाहे आप कितने भी बिजी क्यों ना हो अपने लाइफ में। ऐसी कोई भी नहीं है मेरी लाइफ में, तो ऐसी नहीं हुई है बचपन से, अगर मैं काउंट करूं, या बहुत सालों से। बट नाउ फ्रॉम सम टाइम आई एम नॉट स्किपिंग माई एक्सरसाइज एंड जिम रूटीन, so I am very regular about this, and I am planning I will continue with this. Okay. If you want to give one advice to every 13-year-old girl about her body, वो क्या होगी? Be comfortable. जिंदगी में चेंजेस आते हैं, इट इज नॉर्मल. इफ यू आर हैविंग पीरियड, इफ यू आर हैविंग इमोशंस, इट इज नॉर्मल. टॉक टू योर मदर, ट्राई टू टॉक टू योर मदर. इफ मदर is able to talk to you, it's wonderful. Otherwise, as a 13-year-old, you can connect with your school teachers if any teacher is there, or you can go to a doctor. You can ask your queries, you can ask your doubts. Friends से मिलने वाले उटपटांग के आइडियाज और सजेशंस या इंटरनेट पे चीजों को देख के पढ़ना और समझने की जगह बेटर टू गो फॉर ऑथेंटिक आंसर्स. राइट. कॉफी, टी या मेडिटेशन, सबसे बढ़िया एनर्जी बूस्टर आपके लिए क्या है? मेडिटेशन. ओके. 100 and 1000 times. I have stopped coffee 20 years back. I have stopped tea 7 years back, and I am regular on my meditation. Wow. So, what is one myth about women's health that you want to bust forever? Women deserve to be healthy. Okay. So, next question. If happiness were a medicine, what would be its main ingredient? Self-love. Okay. Okay. So, I know that you are a chakra healer also. You teach that. So, what is that one chakra that you feel most women need to heal first? Heart chakra. Okay. Why is that? Love. It is love for self, love for everybody in the family, acceptance for every person in the family the way they are. Maybe it is in-laws, maybe it is husband, maybe it is kids, maybe it is neighbors. So when love flows from the heart to other heart, everything is balanced, everything falls in place. So this is the most important chakra. That is so beautiful, डॉक्टर रितु. और इतना मजा आया ना आपके साथ आज बातें करके. इतनी सारे जो क्वेश्चंस थे वो सारे आज ना आंसर हो गए. आज सब पता लग गया कि क्या होता है. इट वाज रियली वंडरफुल टॉकिंग टू यू टुडे. सेम हियर रचना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा. So to all our listeners, remember, your health is not just about your body. It's about your mind, your emotions, and your soul too. And if you are a man listening, I really want to appreciate you for being here. Because when you take the time to understand women's health, you become a stronger support system for the woman in your life. Be it your mother, your sister, your wife, your daughter, or even your colleagues and friends. And if you found value in today's episode, don't forget to like, share, and subscribe. And of course, share this podcast with someone who needs to hear it. So until next time, keep shining, keep growing, and most importantly, keep blossoming every day. Thank you so much. And thank you, Dr. Ritu. Thank you. You're welcome.